Right, Peter. So the second generation antipsychotics, remember they are the first line therapy for the schizophrenia. They are the modern drugs. Any patient comes to you with a schizophrenia, the first line therapy for the schizophrenia should be the second generation antipsychotics, right? As I mentioned, they have the lower incidence of extrapyramidal symptoms than the first generation antipsychotics. But if they have reduced incidence of extrapyramidal symptoms, they have their own problems. What problems? Second generation antipsychotics have a higher risk of developing some metabolic side effects, like if you are taking second generation antipsychotics for a long time, you may develop diabetes mellitus. You may develop another metabolic adverse effect, that is a hypercholesterolemia, weight gain. So be careful. If it is not producing the extrapyramidal symptoms, it can produce sugar, hypercholesterolemia, weight gain. This can be very much difficult to manage later. Remember, second generation antipsychotics block not only the dopamine receptors, but they can block the serotonin receptors as well. So it means the second generation antipsychotics will help you relieve not only the positive symptoms but also the negative symptoms as well. Because if you remember that the negative symptoms were not only due to the dopaminergic, yeah, just a second, let me show you. As I told you here, that the negative symptoms are not due to the decreased dopaminergic neurotransmission, but there was some role of the glutamate and the serotonin receptors as well. And because the second generation antipsychotics block not only the dopaminergic receptors, so they also have impact on the serotonin receptors. So second generation drugs relieve the positive symptoms as well as the negative symptoms as well, right? So this is the thing. We'll talk about in detail the first generation, second generation drugs, but here just a little thing about the refractory patient. There are 10 to 20% patients who show insufficient response to both first generation and second generation antipsychotics. They do not show, they are not relieved by the first generation or second generation antipsychotic. This is a problem. So in this case, what should be the drug of choice? Drug of choice should be क्लोज़ापिन. क्लोज़ापिन भी एक सेकंड जनरेशन है. जब सारी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन काम नहीं करें तो सेकंड जनरेशन की ही एक ड्रग है, दैट इज़ द क्लोज़ापिन. It can be the drug of choice. It is very much effective antipsychotic. It has minimal risk of extrapyramidal symptoms because it is second generation antipsychotics. Its use is limited because of the severe adverse effect. Severe adverse effect like the bone marrow suppression leading to aplastic anemia, immunosuppressive state obviously leading. Another very severe adverse effect is the seizures, cardiovascular side effect like orthostatic hypotension, पोजिशनल जो हाइपोटेंशन होता है, एंड द रिस्क ऑफ सीवियर एग्रेनुलोसाइटोसिस ऑब्वियसली ड्यू टू द बोन मेरो सप्रेशन की वजह से एग्रेनुलोसाइट्स नहीं बनते. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जब काम ना करें तो सेकंड जनरेशन की ही एक ड्रग होती है क्लोज़ापिन, वो यूज़ करते हैं. लेकिन बी केयरफुल, ये इफेक्टिव ज़रूर है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीवियर हैं. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. आफ्टर दिस इफ़ वी गो हेयर then we'll talk about the mechanism of action in detail. Mechanism of action of what? Antipsychotic drugs, the first generation, second generation in general. What is the mechanism of action? The very first target should be dopamine antagonism. Yeah, as I told you, all the first generation plus most of second generation antipsychotic drugs, they are the D2 receptor blocker in the brain and the mesolimbic pathway especially, and in the periphery as well. कुछ सेकंड जनरेशन ऐसी होती हैं जो कि डोपामिन के साथ सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं. ठीक है, क्या कहा मैंने? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक तो सारे के सारे डोपामिन की ब्लॉक कर रहे हैं, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक कर रहे हैं. लेकिन सेकंड जनरेशन में ऐसा नहीं. सेकंड जनरेशन की कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ डोपामिन को ब्लॉक करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेरोटोनिन को ब्लॉक करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डोपामिन के साथ सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करती हैं. क्लियर हो गया? मोस्ट सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स दे इनहिबिट द सेरोटोनिन रिसेप्टर. पर्टिकुलरली व्हाट सेरोटोनिन रिसेप्टर? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2A रिसेप्टर, ये याद रखना ज़रूरी है. और इसी वजह से सेकंड जनरेशन जो है, क्योंकि वो सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, तो दे कैन रिलीव द नेगेटिव सिम्टम्स एज वेल लाइक सोशल विड्रॉल, पर्सनालिटी बिहेवियर चेंजेस.
तो ज़रा बात करते हैं कुछ सेकंड जनरेशन ड्रग्स की जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती हैं और नेगेटिव सिम्टम्स से छुटकारा दिला सकती हैं। याद रखें ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती हैं लेकिन साथ में डोपामिन को भी ब्लॉक कर सकती हैं। लाइक नंबर 1 क्लोज़ापिन, राइस्पेराडोन, एरिपेप्राजोल, ब्रेक्सीपेराजोल एंड कैरिप्राज़ीन। उसके अलावा कुछ और जैसे कि क्विटियापिन एंड पिमावेंसरन। तो ये कुछ सेकंड जनरेशन ड्रग्स है। मैं यहाँ पे बेटा बात एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब फर्स्ट जनरेशन की बात आएगी तो वो सिर्फ डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, लेकिन जब बात आती है सेकंड जनरेशन की तो वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द डोपामिन एंटागोनिज्म ओनली। सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक डोपामिन के साथ सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने की सलाहियत रखती हैं एंड दिस इज़ वाई दे कैन रिलीव द नेगेटिव सिम्टम्स एज वेल। तो बात करते हैं ज़रा वन बाय वन। सबसे पहले कौन है? क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन हैज़ हाई एफिनिटी लुक for dopamine receptors and so many other receptors as well. Like clozapine can block the dopamine receptors 1, dopamine 4 receptor। 5 तरह के dopamine receptor होते हैं ना बेटा, 1 2 3 4 5। तो the clozapine can block dopamine 1, dopamine 4 receptor। It can block the serotonin receptor 5-hydroxytryptamine 2। It can block the muscarinic receptor, alpha adrenergic receptor एंड वीक D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। D1 और D4 को तो स्ट्रांगली ब्लॉक करती है क्लोज़ापिन, लेकिन D2 को वीकली ब्लॉक कर सकती है। व्हाट अबाउट राइस्पेराडोन? ये सिर्फ सेरोटोनिन की कर तो डोपामिन को भी ब्लॉक करती है, मैं बताता हूँ। इट्स वेरी गुड 5-hydroxytryptamine 2A रिसेप्टर ब्लॉकर। इट कैन ब्लॉक 5-hydroxytryptamine 2A रिसेप्टर मोर देन इट ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर एज डज द ओlanzapine। ठीक है, so you getting my point बेटा? What about clozapine? Clozapine is really good at blocking all these D1 D4 serotonin receptor muscarinic alpha adrenergic। तो आप समझ सकते हैं बेटा, आप क्लोज़ापिन दोगे उससे डोपामिन रिसेप्टर भी ब्लॉक होगा, सेरोटोनिन का रिसेप्टर भी ब्लॉक होगा, पॉजिटिव सिम्टम भी रिलीव होंगे, नेगेटिव सिम्टम भी रिलीव होंगे। लेकिन आप सोचें दूसरे साइड इफ़ेक्ट कितने आएंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर खामखा में ब्लॉक हो रहा है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा आएंगे बेटा? ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे पेरीफ्री में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग आएंगे। तो नो डाउट दे आर वेरी गुड। दे कैन ब्लॉक द सेरोटोनिन रिसेप्टर, दे कैन ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर, दे कैन रिलीव द सिम्टम्स फॉर यू, बट ऑल अदर रिसेप्टर विच आर बीइंग ब्लॉक्ड दे कैन प्रोड्यूस द साइड इफ़ेक्ट। Risperidone blocks the serotonin receptor more than the D2 receptor. And these three drugs, these three second generation drugs, aripiprazole, brexpiprazole and cariprazine, they are the partial antagonist at the D2 dopamine 2 receptor and 5-hydroxytryptamine 1A receptor, and they are antagonist at the 5-hydroxytryptamine 2A receptor. So it's a good news. We have to actually block the serotonin receptor type 2A, and aripiprazole, brexpiprazole, cariprazine, they are blocker of 5-hydroxytryptamine 2A. But along with blocking this serotonin receptor, they can produce the agonism of some other receptors. This can be the problem, because we do not have to produce the agonism at these receptors, we also have to antagonize them. But because these three drugs are very good antagonist of this receptor, this effect can be neglected. They are partial agonist at the dopamine receptor D2 and 5-hydroxytryptamine 1A, right? What about clozapine? Can block D1 D4 strongly, can block D2 weakly, can block the serotonin receptor, can block muscarinic adrenergic receptor. Risperidone good looking, blocking the 5-hydroxytryptamine 2A यानी कि serotonin receptor वही, और D2 को बहुत कम करती है। एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सीपिप्राजोल, कैरिप्राज़ीन एंटागोनिस्ट एट 5-hydroxytryptamine 2A। ठीक है बेटा, इस तरीके से। देन कम्स द क्विटियापिन। क्विटियापिन इज अ वीक ब्लॉकर of dopamine and 5-hydroxytryptamine 2A. Good. We have to block these two. So it can be a very good drug of choice, but it has the poor affinity to receptor. Yeah, this is the thing, obviously. So it's a weak blocker. So it will not bind to the receptor tightly.
सो रिसेप्टर के साथ टाइटली बाइंड नहीं होगी तो रिसेप्टर ब्लॉक भी अच्छे से नहीं होगा। रिसेप्टर ब्लॉक नहीं होगा तो ऑब्वियसली इफेक्ट्स भी कम आएंगे, तो इफेक्ट्स कम होंगे तो फिर साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड लास्टली पिमेवेंसरिन इट इज़ इनवर्स एगोनिस्ट एंड द एंटागनिस्ट एट द सेरोटोनिन रिसेप्टर। सेरोटोनिन कौन सा? ए और सी, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2A और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2C। ठीक है। पिमेवेंसरिन ऐसी सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, याद रखें, जिसकी डोपामिन रिसेप्टर के लिए कोई एफिनिटी नहीं है। अब यहाँ देखें क्विटापिन ब्लॉकिंग द D2 एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर एज वेल। एरिपेप्राजोल, ब्रेक्सीपेप्राजोल हो, दे हैव एफिनिटी फॉर द सेरोटोनिन एंड द डोपामिन रिसेप्टर एज वेल। वो अलग बात है कि सेरोटोनिन को एंटागोनाइज कर रहा है, डोपामिन को एगोनाइज कर रहा है, लेकिन दे कैन स्टिल बाइंड विद द डोपामिन एंड द सेरोटोनिन रिसेप्टर। बट दिस पिमेवेंसरिन इज़ द सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक जिसकी कोई एफिनिटी ही नहीं होती डोपामिन रिसेप्टर के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, and they are indicated for the psychosis associated with the Parkinson disease. This can be a very good question for you, that which second generation antipsychotic can be a very good drug of choice for the treatment of the psychosis associated with the Parkinson disease is the pimevencerin. Pimevencerin is the only second generation antipsychotic with no affinity for the dopamine receptors, and yeah, it's the antagonist of the serotonin receptor. So this was the mechanism of action, beta. First generation antipsychotics, they are having nice party with dopamine receptor. We'll now be talking about the actions of these drugs, beta. Okay, right, beta. The actions produced by antipsychotic drugs, obviously they produce the antipsychotic effects, no doubt. They are antipsychotic drugs, so they have to relieve the psychotic symptoms, like positive symptoms, negative symptoms. Reduction of positive symptoms by blocking the dopamine receptors in the mesolimbic pathway. These positive symptoms are relieved by the first generation agents and second generation agents, but you know beta, first generation antipsychotics are not good at relieving the negative symptoms. Negative symptoms are relieved by second generation antipsychotics. First positive symptoms like hallucinations, delusions, they can be easily relieved by second generation antipsychotics, but the first generation have no effect on the negative symptoms. Negative symptoms like social withdrawal, blunted affect, apathy, impaired attention and cognitive impairment, जिसमें behavior और personality changes आते हैं. Second generation agents, especially the clozapine, can reduce the negative symptoms to some extent, right? I hope you understand the negative symptoms. How easy it is. If you are taking first generation antipsychotics like chlorpromazine, haloperidol, so they will block the positive symptoms, they will relieve the positive symptoms but not the negative symptoms. For negative symptoms, if you want to relieve both positive and negative symptoms, go with second generation antipsychotics. What about the extrapyramidal effects? Extrapyramidal effects, this is actually the side effect, but obviously it is produced by the first generation antipsychotics, not by the second generation antipsychotics. Second generation antipsychotics also produce these extrapyramidal effects, but up to very low extent, because they bind to the look, why the extrapyramidal effects are produced. मैं इस पर काफ़ी तफसील में बात कर चुका हूँ पहले कि एक्स्ट्रापैरामिडल इफेक्ट्स प्रोड्यूस क्यों होते हैं। जब डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में, तो डोपामिन रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम होती है और कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, एक्स्ट्रापैरामिडल सिम्टम्स आते हैं। लेकिन बात यह है बेटा कि फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स जो होते हैं वो टाइटली ब्लॉक करते हैं डोपामिन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से डोपामिनर्जिक एक्टिविटी काफ़ी कम और कोलिनर्जिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है सेकंड जनरेशन एजेंट्स की, तो वो लूजली ब्लॉक करते हैं सेकंड डोपामिन रिसेप्टर्स को, लूजली, वीकली, लो पोटेंटली ब्लॉक करते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी कंपैरिजन में इतनी नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक दे ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर वेरी टाइटली,
तो जितना टाइटली डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होगा उतना ही कोलिनर्जिक एक्टिविटी कंपैरिजन में बढ़ेगी, तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स की, तो ये भी नो डाउट्स ब्लॉक करते हैं डोपामिन रिसेप्टर को, जैसे क्लोज़ापिन वगैरह था, लेकिन लेस टाइटली और वीकली। तो इस वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी कम होते हैं। वाई एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट, ये पहले भी बता चुका हूँ, ड्यू टू द ब्लॉकेट ऑफ द डोपामिन रिसेप्टर्स इन द नाइट्रोस्ट्राइडल पाथवे। डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम हो जाती है, कंपैरेटिव कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। What kind of extra parameter? Look, when we say na कि if you take the first generation antipsychotics like the haloperidol you take, you will get relief of the psychotic symptoms of the schizophrenia, but you will develop the movement disorder. What movement disorder? Number one, dystonia. What are the dystonias? मैं इसको थोड़ा और तफसील में बात करूँगा आगे। What are the dystonias? Okay, we just go simply. We just say you will develop the dystonia, that is the involuntary twisting or the distorted posture, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स जिसमें ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया वगैरह आ जाता है, एकथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, दैट इज़ द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द टंग, लिप्स, नेक, ट्रंक एंड लिम्स। मैंने इसको क्विकली रीड कर लिया यहाँ पे क्योंकि मैंने इसकी तफसील आगे देनी है, बट फॉर नाउ यू जस्ट कीप इन योर माइंड एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स आर मोर विद द फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स। एंड वाई आर दे प्रोड्यूस्ड? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ द डोपामिन रिसेप्टर्स इन द नाइट्रोस्ट्राइडल पाथवे। नॉर्मली कहाँ पे ब्लॉक होने चाहिए थे? जहाँ पे पैथोलॉजी है, जो कि कहाँ पे है? मीजोलिम्बिक पाथवे में, ठीक है। लेकिन क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर्स तो नाइट्रोस्ट्राइडल पाथवे में भी होते हैं, तो वो तो हर जगह पे ड्रग जो है डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। तो इस वजह से जब नाइट्रोस्ट्राइडल पाथवे में डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी कंपैरिजन में बढ़ जाती है, और इसकी वजह से ये मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिस्टोनिया, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, एकथेसिया और टार्डिव डिस्काइनेशिया आ जाता है। ठीक बच्चों, इस तरीके से। ओके, कुछ और इफ़ेक्ट्स बेटा, कुछ और एक्शंस आपके इन ड्रग्स के, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के एंटीएमेटिक इफेक्ट्स। एंटीएमेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द D2 रिसेप्टर ऑफ द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और सेकंड जनरेशन ड्रग्स हो, वो डोपामिन रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर रही है ना, तो उनको जहाँ पे डोपामिन रिसेप्टर मिलेगा ज़रूर थोड़ी वो हमने तो ओके मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है ताकि हमारे, लेकिन बेटा जहाँ जहाँ पे डोपामिन रिसेप्टर मौजूद होगा वो ब्लॉक होगा ऑब्वियसली। तो जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि आप चाहे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक दे रहे हैं, सेकंड जनरेशन दे रहे हैं, वो डोपामिन रिसेप्टर तो ब्लॉक हो ही रहा है ना। एक आपको ने बताया था कि ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है और ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, तो ये एक तो हो गया आपका मीजोलिम्बिक पाथवे। यहाँ पे जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली वो आपने ब्लॉक करने होते हैं, ये आपका टारगेट होता है ना, ताकि पॉजिटिव सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं। लेकिन डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में कहीं बहुत सारी और जगहों पे मौजूद हैं, जैसे कि आप ये बेजल गैंग्लिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइबर्स आते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा से बेजल गैंग्लिया की तरफ, जो नाइट्रोस्ट्राइडल पाथवे बनता है, तो यहाँ पे जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो भी ब्लॉक होते हैं, इसकी जैसे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं। इसी तरीके से जो आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वहाँ पे जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो भी ब्लॉक होते हैं, तो इसकी वजह से एंटीमेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो डोपामिन रिसेप्टर जहाँ जहाँ मौजूद होगा वो ब्लॉक होगा, ठीक है। वो चाहे लिम्बिक सिस्टम में हो, चाहे बेजल गैंग्लिया में हो, चाहे आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर हो। लिम्बिक पाथवे के अंदर जो मीजोलिम्बिक पाथवे है उसमें डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे लिम्बिक सिस्टम में, तो आपके जो पॉजिटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर बेटा बेजल गैंग्लिया के अंदर मौजूद डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होंगे, कोलिनर्जिक एक्टिविटी कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आएंगे। डोपामिन रिसेप्टर्स आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में ब्लॉक हो जाएंगे तो वॉमिटिंग नहीं होगी, एंटीएमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये ड्रग्स देके आप एंटीएमेसिस भी करवा सकते हो, वॉमिटिंग बंद करा सकते हो, सही। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। वाई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स? आपको पता है ना कुछ एंटीसाइकोटिक्स हैं जैसे कि थायरोइडाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, क्लोज़ापिन, ओलंजापिन, इसमें कुछ फर्स्ट जनरेशन भी हैं, कुछ सेकंड जनरेशन भी हैं। इनका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं
उनको भी ब्लॉक करती हैं ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को। डोपामिन के साथ साथ एंटीकोलिनर्जिक, यानी कि खास करके देखें ना, जैसे अब मैंने पीछे बताया था कि क्लोज़ापिन जो है वो मस्करेनिक रिसेप्टर, देखें मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर। तो इस वजह से एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये ड्रग्स, इनका टारगेट होना चाहिए डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना, लेकिन ये साथ में दूसरे रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने का पोटेंशियल रखती हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, बॉडी में जगह जगह पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ क्या होगा। सलाइवरी ग्लैंड्स में सारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे चलता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड्स में जो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे तो सलाइवा की प्रोटेक्शन नहीं होगी, माउथ ड्राई रहेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है एक क्लोज़ापिन की। क्लोज़ापिन उल्टा सलाइवेशन को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पूरा जीआईटी के जो पेरिस्टालसिस है वो चलती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक पे। तो ऑब्वियसली जब आप कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, तो जीआईटी पेरिस्टालसिस रुक जाएगी, फूड ज़्यादा वक्त के लिए बाउल में रहेगा तो उसमें से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा और कॉन्स्टिपेशन होगी। इसी तरीके से यूरिनरी जो ब्लैडर है, जो पेरिस्टालसिस है आपकी यूरेटर्स की, वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन रिटेन होगा। इसी तरीके से कन्फ्यूजन, इनहिबिशन ऑफ द जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट मसल, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन होगी, ब्लड विजन होगा। ठीक है, the anticholinergic effects assist in reducing the risk of the extrapyramidal symptoms. This can be a very good news. If the drug is having the anticholinergic effects, they can be, like very much helpful. How? अब ये थोड़ा आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। मैंने पीछे समझाया था ना बेटा कि ये आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा है मिड ब्रेन में, यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ पे आपका बेजल गैंग्लिया मौजूद है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? जब आपके बेजल गैंग्लिया में मौजूद डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं ना, तो डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाती है और उसके कंपैरेटिव कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अगर आपकी ड्रग एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी दिखा रही है तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी तो कम हो ही रही है, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाने की वजह से ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। दोबारा डोपामिन और कोलिनर्जिक एक्टिविटी के बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्यों आ रहे थे? इस इम्बैलेंस की वजह से, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी का कम होना, कोलिनर्जिक एक्टिविटी का ज़्यादा होना। बट इफ़ योर ड्रग एंटीसाइकोटिक इज प्रोवाइडिंग द एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, then this increased cholinergic response will be decreased. So this is decreased, this is also decreased. So the balance will be created. So no extra pyramidal symptoms will occur. But okay, your drug is having anticholinergic effect. This is good. This will help you relieving the extra pyramidal symptoms. But be careful. If your drug is having anticholinergic effect, it can cause constipation. It can cause urinary retention, blood vision. क्योंकि एक रिसेप्टर ब्लॉक नहीं हो रहा ना बॉडी में, जहाँ पे भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर उसको मिलेंगे ब्रेन में पेरीफ्री में, वो उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से अदर इफेक्ट्स ऑफ योर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स along with blocking the dopamine receptors, the cholinergic receptor, they can block the alpha adrenergic receptors as well, producing the vasoconstriction earlier, and leading to lightheadedness and the orthostatic hypotension with the position. And not only they block the alpha adrenergic receptors, but they can also alter the temperature regulating mechanism by producing some changes in the thermoregulatory center hypothalamus. They can cause the poikilothermia. Poikilothermia ऐसी कंडीशन है in which the body temperature varies with environment. नॉर्मली क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक सस्टेन रहता है, इतदाल में रहता है। बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आपकी जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है आपकी बॉडी को कूल करता है, और अगर बाहर ज़्यादा ठंडक है, बाहर ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट है तो आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है। ऐसा होता है ना। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये मैकेनिज्म फेल हो जाए, तो उसको हम पोइक्लोथर्मिया कहते हैं। और अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स पे है तो उसमें पोइक्लोथर्मिया देखने को मिलती है। अच्छा, उसके अलावा ब्लॉकेड ऑफ द D2 रिसेप्टर्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन लीड टू द इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन। सो बी केयरफुल। आप एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हो, जहाँ पे भी D2 रिसेप्टर मिलेगा वो ब्लॉक होगा। अगर पिट्यूटरी के अंदर D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो प्रोलैक्टिन का रिलीज बढ़ जाएगा, एंड इट कैन बी कन्फ्यूज्ड विद द प्रोलैक्टिनोमा एज वेल।
प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा तो पेशेंट को गैलेक्टोरिया होगी, सही है। कुछ और इफेक्ट जैसे कि सीडेशन, ड्रग्स दैट आर पोटेंट एंटागोनिस्ट एट द हिस्टामिन रिसेप्टर। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से हमने स्टोरी स्टार्ट की थी। डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने से डोपामिन के साथ सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक किया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक किया, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक किया, अब हिस्टामिन रिसेप्टर आ गया। H1 कुछ होती हैं एंटीसाइकोटिक्स, मेंशन नहीं किया फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन, बट दे कैन ब्लॉक द H1 हिस्टामिन रिसेप्टर। हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉक होने से सीडेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन, क्विटापिन, क्लोजापिन, ये कुछ ऐसी सेकंड जनरेशन है। क्लोरप्रोमाजीन तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, खैर बाकी क्विटापिन और क्लोजापिन जो हैं वो सेकंड जनरेशन है। दे कैन कॉज सीडेशन बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द हिस्टामिन रिसेप्टर। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वेट गेन, especially more with the second generation antipsychotics. These are some other effects that can be seen with the antipsychotics drugs, right beta? So you are clear, I hope, with the actions of the antipsychotics. एंटीसाइकोटिक इफेक्ट तो है ही है ड्रग्स का, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट स्पेशली विद द फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स। इसके अलावा एंटीमेटिक इफेक्ट, क्यों? क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट अगर है आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग का तो आप एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम से तो बच जाओगे, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स की वजह से दूसरे और प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद एड्रिनर्जिक रिसेप्टर की ब्लॉकेज और बाकी चीज़ें बेटा, यहाँ तक तो हो गया बेस्ट। अब इसके बाद ज़रा हम चलते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे, ठीक है बच्चों।